Good morning, friends. Welcome to my 53rd lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding dispersion. I have told that dispersion studies the scatterness of the items from its central value in any series. So, dispersion is a study of scatterness, or it's a study of variability of individual item from the central value of a series. Less the dispersion, more representative the average. More the dispersion, less representative the average. Next, we have discussed regarding different types of dispersion. We have discussed that dispersion may be absolute dispersion or relative dispersion. Absolute dispersion is found out in the same unit in which data is given, but relative dispersion is found out in percentage or in point form. Next, we have discussed there are two modes of methods of computing dispersion. First one is that is positional dispersion, and the second one is mathematical dispersion. We are discussing regarding positional dispersion. The positional dispersions are based upon two extreme items of a series. Okay, in case of positional dispersion, there are many other techniques we have discussed. There is range, there is interquartile range, there is quartile deviation, there is decile range, there is percentile range. So out of which we have already read regarding range. So we have discussed range is the difference between largest item and smallest item of a particular series. We have discussed range and how to calculate range. Range is calculated by L minus S. L means largest item, S means smallest item. Then we have discussed how to compute coefficient of range. So the coefficient of range is computed by dividing L minus S divided by L plus S. We have already discussed this. In today's class, we will focus our discussion upon IQR. IQR means interquartile range. Today we will discuss more regarding interquartile range. So before discussing regarding interquartile range, let me first share my screen with you. Then we will discuss more related to interquartile range or IQR. 1 second, please. Okay, friends. So today we will discuss regarding interquartile range. पहले हम समझेंगे ये इंटरक्वार्टाइल रेंज क्यों कैलकुलेट किया जाता है. हम तो रेंज निकाल रहे थे, रेंज इजीली फाउंड आउट कर रहे थे L माइनस एस अप्लाई करके. इंटरक्वार्टाइल रेंज की जरूरत क्यों पड़ा? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग आउट IQR or interquartile range? Generally, there are certain limitation of range. Most important limitation of range is लिमिटेशन ऑफ रेंज. हम जो रेंज पढ़े थे उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन एक है. सबसे बड़ा लिमिटेशन इज रेंज इज बेस्ड अपॉन ओनली टू एक्सट्रीम आइटम. रेंज इज बेस्ड अपॉन ओनली टू एक्सट्रीम आइटम. बेटा कौन कौन सा वो आइटम है? पहला आइटम है L, दूसरा आइटम है S. तो इसका मतलब अगर ये एक सीरीज है तो यहां पर सिर्फ हम दो आइटम को लेते हैं. कौन कौन सा दो आइटम? एक है स्मॉलेस्ट आइटम, S स्मॉलेस्ट आइटम, और L लार्जेस्ट आइटम. तो जब हम रेंज निकालते थे हम सिर्फ यही दो आइटम को कंसिडर करते थे. कौन कौन सा? स्मॉलेस्ट आइटम और लार्जेस्ट आइटम. लेकिन एक सीरीज का मोस्ट ऑफ द आइटम फॉल्स नॉट ऑन एक्सट्रीम बट इन द मिडिल. जनरली एक सीरीज का मैक्सिमम आइटम एक्सट्रीम में नहीं होता है, मिडिल में होता है. अगर मिडिल में होता है
तो ये रेंज एक अच्छा डिस्पर्सन का मेजर नहीं हो सकता है, क्योंकि इन एनी सीरीज मोस्ट ऑफ द आइटम lies in the middle. Therefore, we go for another way of finding out dispersion, that is known as quartile range और interquartile range. तो interquartile range में हम क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम को कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो रेंज निकालेंगे वो क्वार्टाइल के बेसिस पर निकालेंगे। हमारा कितना क्वार्टाइल होता है, हमारा 3 क्वार्टाइल होता है। पहला क्वार्टाइल Q1, दूसरा क्वार्टाइल Q2, नेक्स्ट क्वार्टाइल Q3. So what is a quartile? Quartile is something which divides the entire series into how many parts? Into 4 equal parts. तो कितना क्वार्टाइल होता है, 3 क्वार्टाइल होता है। कौन कौन सा 3 क्वार्टाइल? Q1, Q2, Q3. मैं बताया था कोई भी सीरीज का मोस्ट ऑफ द आइटम मिडिल में होता है। मिडिल में होता है मतलब ये जगह पर होते हैं मोस्ट ऑफ द आइटम। अगर ये जगह पर मोस्ट ऑफ द आइटम होते हैं, एक्सट्रीम में मोस्ट ऑफ द आइटम नहीं होते हैं, तो क्या होता है, तो हम जब डिस्पर्सन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम आइटम्स का डिफरेंस ना निकालकर ये जो दोनों छोर है जिसके बीच में मोस्ट ऑफ द आइटम्स है, कौन कौन सा दोनों छोर है, एक छोर है Q1, एक छोर है Q3, ये दोनों के बीच में मैक्सिमम आइटम फॉल करते हैं किसी भी सीरीज पर। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाल लेंगे उसको बोलेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज। बेटा समझ में आ रहा है इंटरक्वार्टाइल रेंज क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि रेंज सिर्फ 2 आइटम को लेता था, स्मॉलेस्ट आइटम और लार्जेस्ट आइटम, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द आइटम इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली फॉल्स इन द मिडिल। तो मिडिल में मैक्सिमम आइटम रहता था, इसीलिए हमको जब डिस्पर्सन सही तरीके से निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गैप लेना पड़ेगा एक्सट्रीम का, लेकिन कौन सा एक्सट्रीम का, मिडिल वाला एक्सट्रीम का गैप लेंगे। इसीलिए हम किसको लेते हैं, गैप लेते हैं Q1 और Q3 के बीच में। तो वो गैप को हम बोलते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो पहले लिखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। लिखिए डेफिनेशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन interquartile range is the difference between the third quartile and the first quartile. The third quartile को सिंबॉलिकली बोला जाता है Q3 एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल को सिंबॉलिकली क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। तो अगर हम निकालेंगे IQR कैसे निकलेगा, इंटरक्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस गैप बिटवीन Q3 माइनस Q1। बेटा समझ में आ रहा है क्या, ये Q3 और Q1 के बीच में कितना गैप है, तो इसको बोलते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। हमको पता है जनरली एक क्वार्टाइल एक सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है, 4 पार्ट में। हर परसेंटेज में पोर्शन में कितना परसेंट रहता है, 25%, यहाँ पर 25%, यहाँ पर 25%, यहाँ पर 25%। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज हम कौन से आइटम को लेकर निकालते हैं, मिडिल 50% आइटम को लेकर निकालते हैं। 50% कैसे आया, यहां से यहां तक 25%, यहां से यहां तक 25%, तो टोटल गैप हो गया कितना, मिडिल 50%। तो मिडिल 50% आइटम के बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालते हैं। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। बात समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज।
तो हम पहले निकाले क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो आई क्यू आर निकाले। आई क्यू आर कैसे निकला, आई क्यू आर निकालने का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1। But this is the absolute measure of dispersion. This is a absolute measure. What is absolute measure? बताया था absolute measure एक ऐसा मेजर है जहां पर कौन से यूनिट में डिस्पर्सन आएगा, सेम यूनिट इन विच डाटा इज गिवन। तो कौन से यूनिट में आएगा, इन यूनिट में आएगा, यूनिट कौन से यूनिट में, सेम यूनिट इन विच ओरिजिनल डाटा इज गिवन। जिस यूनिट में ओरिजिनल डाटा दिया हुआ है, सपोज मीटर में दिया जाएगा तो इंटर क्वार्टाइल रेंज मीटर में आएगा। अगर ओरिजिनल डाटा लीटर में दिया जाएगा तो इंटर क्वार्टाइल रेंज लीटर में आएगा। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं, Q3 माइनस Q1। अभी हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। हेडिंग कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ coefficient of interquartile range. What is coefficient of interquartile range? It is an relative measure of dispersion. तो coefficient कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ये कौन सा मेजर है, ये रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर मतलब इसका वैल्यू यूनिट लेस में आएगा, पॉइंट में आएगा या परसेंटेज में आएगा। तो इट्स ए रिलेटिव मेजर। तो इसमें किस में आएगा, आइदर यूनिट में आएगा या नहीं तो किस में आएगा, या नहीं तो परसेंटेज फॉर्म में आएगा डिस्पर्सन। बात समझ में आ रहा है क्या। तो हम बात कर रहे थे इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। इंटर क्वार्टाइल रेंज एब्सोल्यूट मेजर है और इसका रिलेटिव मेजर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। बात समझ में आ रहा है क्या। अभी हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। अभी पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ IQR एंड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, तो हेडिंग कीजिए कैलकुलेशन ऑफ IQR एंड इट्स कोएफिशिएंट। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ IQR एंड इट्स कोएफिशिएंट। कैलकुलेशन ऑफ IQR and its coefficient। अभी हम पढ़ेंगे कैसे हम IQR निकालेंगे या नहीं तो इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे। IQR या नहीं तो इसका कोएफिशिएंट को कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ IQR और कोएफिशिएंट हम पढ़ेंगे 3 सीरीज में। कौन कौन सा 3 सीरीज है, पहला सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो पहले पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट IQR एंड इट्स कोएफिशिएंट इन केस ऑफ फर्स्ट व्हिच सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में हमको सिर्फ एक्स देगा, एक्स मीन्स ओनली वेरिएबल्स आर गिवन। सेकेंड,
डिस्क्रेट सीरीज। व्हाट इज ए डिस्क्रेट सीरीज? डिस्क्रेट सीरीज में हमको एक्स देगा और फ्रीक्वेंसी देगा, इसका मतलब हमको वेरिएबल्स देगा और उसका फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो इस केस में हम कैसे क्या निकालेंगे? IQR और इसका कोएफिशिएंट। थर्ड हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज? यहां पर x देगा, f देगा, लेकिन x जो देगा वो क्लास इंटरवल फॉर्म में देगा। व्हाट इज क्लास इंटरवल? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस फॉर्म में देगा। लेकिन ये जो भी सीरीज हो फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है? IQR का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 और कोएफिशिएंट ऑफ IQR का फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ IQR का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ये एग्जाम्पल। अभी तीनों के ऊपर एक एक एग्जाम्पल बनाएंगे। पहले इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आपको हम जो डिस्कस किए थे कैसे Q1, Q2, Q3 निकालना है तीनों सीरीज का, उसके बारे में याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो जाकर हम निकाल सकते हैं हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ IQR इन एंड इट्स कोएफिशिएंट। अगर आपको वो याद नहीं है, आप मेरा क्वार्टाइल्स का वीडियो पहले देख लीजिए। यू हैव टू रेफर व्हिच वीडियो? रेफर क्वार्टाइल्स वीडियो। वहां पर मैं डिटेल्स में बताया हूं हाउ टू कैलकुलेट Q1, Q2, Q3। आप अगर क्वार्टाइल्स वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा Q1, Q2, Q3 कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद नहीं है आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं अभी डायरेक्टली प्रॉब्लम कराऊंगा इंडिविजुअल सीरीज का कैसे हम IQR निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे IQR निकालेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे IQR निकालेंगे। ठीक है, तो देखते एक सेकेंड। Okay, this is the example of a individual series. Why it is a individual series? Because data are given individually, only x value is given. डिस्क्रीट सीरीज में, ये इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x वैल्यू देता है, वेरिएबल्स देता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब IQR एंड इट्स कोएफिशिएंट। IQR निकालो और इसका कोएफिशिएंट निकालो। ये डाटा दिया हुआ है। हमको पता है IQR निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए? हमको चाहिए Q1 चाहिए और हमको चाहिए Q3 चाहिए। लेकिन Q1, Q3 निकालने से पहले हमको पहले डाटा को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। डाटा को कैसे अरेंज करते हैं? आइदर असेंडिंग फॉर्म में या नहीं तो डिसेंडिंग फॉर्म में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में। तो ये जो डाटा दिया हुआ है पहले उसको अरेंज करते हैं। तो देखते हैं अरेंज्ड डाटा। अच्छा, पहले देखिए सबसे छोटा वाला फिगर कौन सा है? पहले सबसे छोटा वाला फिगर को डालते हैं। पहले सबसे छोटा है, शायद मेरे हिसाब से सबसे छोटा है 5। सबसे छोटा है 5। यस, सबसे छोटा वाला 5। तो डाटा को अरेंज करते हैं 5। फिर उससे थोड़ा बड़ा है कौन सा? 5 से बड़ा है 7। तो 7, 5, 7। नेक्स्ट उससे बड़ा कौन सा है? 5, 7 के बाद 10। 5, 7, 10। तो 10। उससे बड़ा कौन सा है? 15, 15। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 5, 7, 10, 15। नेक्स्ट 17, 17। नेक्स्ट 17 गया। उससे बड़ा कौन सा है? 17 से बड़ा
20 20। नेक्स्ट उससे बड़ा कौन सा है 22 22। नेक्स्ट उससे बड़ा कौन सा है 22 के बाद आता है 25 25 इज 25। नेक्स्ट उससे बड़ा कौन सा है 25 के बाद आता है 25 के बाद आपका आ जाएगा 26 26। 25 के बाद 26 फिर आता है कौन सा 28 28। नेक्स्ट वाला कौन सा आता है 28 के बाद 30। So all the data are arranged. So these are arranged data. Now can I calculate n? N means total number of item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n is equal to 11। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी हम क्या निकालेंगे, हमको Q1 निकालना है, हमको Q3 निकालना है। हमको क्वेश्चन में पता है Q1 कैसे निकालते हैं। Q1 इज इक्वल टू इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला है n+1 बाई 4th आइटम। n है 11 + 1 बाई 4 आइटम, that is equal to 11 + 1 12 by 4 12 by 4th item, that is equal to थर्ड आइटम 3 नंबर वाला आइटम। 12 by 4 इज इक्वल टू 3 नंबर वाला आइटम। तो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 नंबर वाला आइटम कौन सा है 3 नंबर वाला आइटम देखो 3 नंबर वाला आइटम कौन सा है 1 2 3 Q1। सो Q1 इज इक्वल टू 10 आ गया। अभी हम बात करेंगे Q3। सो व्हाट इज Q3? Q3 का फॉर्मूला क्या है? Q3 का फॉर्मूला है 3 होल इनटू n+1 बाई 4th आइटम, दैट इज इक्वल टू 3 होल इनटू n कितना है 11 + 1 बाई 4th आइटम। ये हो जाएगा कितना 3, ये 12 बाई 4 3 इंटू 3 आइटम, दैट इज इक्वल टू 9th आइटम। 9 नंबर वाला आइटम Q3 है तो Q3 निकालो। Q3 इज इक्वल टू 9 नंबर वाला आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर वाला आइटम कितना है 9 नंबर वाला आइटम सर है 9 नंबर वाला आइटम है 26। तो 9 नंबर Q9 Q3 इज इक्वल टू 26। बात क्लियर है। Q1 आ गया 10, Q3 आ गया 26। तो अभी हम निकालेंगे, हमको दो चीज निकालना पड़ेगा। क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इस साइड में निकालता हूं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम बोलेंगे IQR। IQR इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1। अच्छा Q3 कितना है Q3 निकालो। Q3 है आपका 26, Q1 है 10, दैट इज इक्वल टू 16। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया कि इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू 16 आंसर। सेकेंड हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। निकालो कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ IQR। हमको पता है कोएफिशिएंट ऑफ IQR इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ IQR इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा Q3 कितना है Q3 है हमारा अभी निकाला है 26, Q1 है 10, तो 26 माइनस 10 डिवाइड बाई 26
plus 10, 26 minus 10 16, 26 plus 10 36, 16 by 36, 16 by 36 हमको निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू, निकालते हैं 16 by 36, 16 divided by 36, that is equal to 0.444. This is the coefficient of IQR in case of individual series. समझ में आ रहा है? तो इंडिविजुअल सीरीज का IQR कैसे निकालते हैं? IQR का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 और कोएफिशिएंट ऑफ IQR का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1. इन दोनों का हम सॉल्यूशन किए. ठीक है. So this is regarding individual series computation of IQR. ओके. अभी हम बात करेंगे कौन सा सीरीज के ऊपर? डिस्क्रीट सीरीज में कैसे IQR निकालेंगे और उसका कोएफिशिएंट निकालेंगे. ओके. एग्जांपल नंबर 6. So this is a case of which series? Discrete series. What is discrete series? Discrete series में आपको क्या देगा? आपको x वैल्यू देगा और f वैल्यू देगा. तो discrete series में हम निकालेंगे IQR. तो डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए हमको पहले दो चीज चाहिए, Q1 चाहिए, Q3 चाहिए. तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या वैल्यू देगा? x वैल्यू देगा और f वैल्यू देगा. आपको पहले निकालने के लिए CF निकालना पड़ेगा. तो पहले x लिखिए क्या क्या दिया हुआ है, फिर f लिखते हैं, फिर CF निकालेंगे. x वैल्यू इज गिवन. x वैल्यू कितना है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40. x वैल्यू गिवन. x में f वैल्यू इज गिवन. f वैल्यू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है देखेंगे. 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4. 10 का 10. नेक्स्ट 15 का 17. नेक्स्ट 20 का 40. नेक्स्ट 25 का 55. नेक्स्ट 30 का 32. नेक्स्ट 35 का 20. नेक्स्ट 40 का 12. तो x आया, f आया. अभी हमको क्वार्टाइल्स निकालने के लिए पहले CF चाहिए. CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड करते हुए जाएंगे. फर्स्ट 4 का हो गया 4. 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14. नेक्स्ट होगा 14 प्लस 17, 14 प्लस 17 इज इक्वल टू 31. नेक्स्ट हो जाएगा 31 प्लस 40, 31 प्लस 40 कितना आता है? 71. नेक्स्ट 71 प्लस 55, 71 प्लस 55 126. नेक्स्ट 126 प्लस 32 that is equal to 158. Next 158 plus 20 that is equal to 178. Next 178 plus 12 that is equal to 190. इसका मतलब हमारा क्वेश्चन में n दिया हुआ है 190. ठीक है. सीरीज मिल गया, n है 190. अभी हमको क्या चाहिए? Q1 चाहिए. तो Q1 कैसे निकलेगा? तो Q1 देखेंगे. तो Q1 computation of Q1. तो Q1 will be, फॉर्मूला क्या है डिस्क्रीट सीरीज में? n प्लस 1 बाई 4th आइटम, n प्लस 1 बाई 4th आइटम. n कितना है? 190 प्लस 1 बाई 4 आइटम, दैट इज इक्वल टू 191 बाई 4. 191 बाई 4 आता है 47.75 आइटम. तो ढूंढेंगे 47.75 कहां पर है? CF में. 4 में है क्या? नहीं. 14 में है क्या? नहीं. 31 में है क्या? नहीं. 71 में 47 है. तो 71 के सामने में जो लिखा हुआ है वो Q1 हो गया. तो आपका Q1 आ गया 20. तो देयरफॉर
Q1 इज इक्वल टू आपको मिल गया 20। तो कंप्यूटेशन ऑफ Q1 गया, उसी तरह से लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ Q3। फॉर्मूला क्या होगा, Q3 इज इक्वल टू 3 होल इंटू n प्लस 1 बाई 4th आइटम, दैट इज इक्वल टू 3 होल इंटू n प्लस 1 बाई 4th, दैट इज इक्वल टू अभी तो निकाल लेते 47.75, 47.75, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 47.75 को 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 143.25 आइटम, 143.25। तो हमको ढूंढना पड़ेगा 143.25 कहां पर है, 143.25 कहां पर है हमको ढूंढना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, देखते हैं 143.25 कहां पर है, दैट इज इक्वल टू देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 143.25, 143.25 कहां पर, अच्छा 4 में नहीं, 14 में नहीं, 31 में नहीं, 71 में नहीं, 126 में, 151 में। तो 151 के बीच में जो है वो हो गया हमारा Q3। तो आपको Q3 मिल गया 30। तो आपको Q3 इज इक्वल टू 30। तो आपको दो चीज मिल गया, Q1 मिल गया, Q3 मिल गया। अभी हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम निकालेंगे क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। फर्स्ट इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो देखेंगे Q3 माइनस Q1, Q3 कितना आया, Q3 आया 30, Q1 कितना आया, Q1 आया 20, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। आंसर आ गया फर्स्ट का 10। फिर हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ IQR। कोएफिशिएंट ऑफ IQR का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, Q3 है 30, 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 10 बाई 50, दैट इज इक्वल टू 0.2। 10 बाई 50 का वैल्यू आता है कितना, 0.2। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये केस में क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल गया 10 और कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल गया 0.2। दिस इज रिगार्डिंग डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिस्क्रीट सीरीज में हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट interquartile range and its coefficient in case of which series, in case of continuous series। तो continuous series का एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7, दिस इज रिगार्डिंग which series, continuous series। एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लेस देन और मोर देन है, तो इसको हम बोलते हैं लेस देन और मोर देन सीरीज। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं ये लेस देन मोर देन नहीं है, ये लेस देन मोर देन क्यों होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर पहले वाला फिगर नहीं दिया हुआ है, लास्ट वाला फिगर नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट वाला लेस देन 2 दिया हुआ है, लास्ट वाला 12 एंड एबव दिया हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे इट इज ए केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज।
ओपन एंडेड सीरीज में हमको क्या दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा Q1, Q2, Q3। Q2 तो नहीं चाहिए, Q1 एंड Q3। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x वैल्यू दिया हुआ है, f वैल्यू दिया हुआ है। तो देखेंगे x वैल्यू, f वैल्यू दिया हुआ है, Q1 निकालते हैं, Q3 निकालते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट x वैल्यू दिया हुआ है, x वैल्यू कितना दिया हुआ है देखेंगे, x दिया हुआ है, फिर f दिया हुआ है। फर्स्ट x से लेस देन 2, कितने वैल्यू है 3। फिर दिया हुआ है 2 से 4, वैल्यू कितना है, f कितना है 8। नेक्स्ट दिया हुआ है 4 से 6, कितना है 12 f। नेक्स्ट दिया हुआ है 6 से 8, f कितना दिया हुआ है 20। नेक्स्ट दिया हुआ है कितना 8 से 10, f कितना दिया हुआ है 10। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 10 से 12, f कितना दिया हुआ है 5। नेक्स्ट दिया हुआ है कितना 12 एंड एबव, f कितना है 2। हमको पहले CF निकालना पड़ेगा। CF को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फर्स्ट केस में 3, सेकेंड केस में 3 + 8 11, थर्ड केस में 11 + 12, 11 + 12 मिलाकर कितना होता है 23। नेक्स्ट इस केस में कितना होगा 23 + 20 43 43। नेक्स्ट 43 + 10 53। नेक्स्ट 53 + 5 58। नेक्स्ट 58 + 2 60। तो व्हाट इज n, n = 60। अभी इस क्वेश्चन का पहले Q1 निकालेंगे, फिर Q3 निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, पहले Q1 निकालते हैं। बेटा Q1 कैसे निकलेगा क्वेश्चन का, Q1 वैल्यू पहले निकालते हैं। अच्छा, तो Q1 = कॉन्टिन्यूअस सीरीज में Q1 कैसे निकालते हैं, पहले Q1 क्लास निकालेंगे। Q1 क्लास निकालो, Q1 क्लास = n/4th आइटम। n कितना है 60/4, दैट इज इक्वल टू 15th आइटम। 15 नंबर वाला आइटम Q1 क्लास है। 15 कहां पर है, 3 में है क्या, नहीं। 11 में है क्या, नहीं। 23 में है। तो Q1 क्लास = 4 to 6। तो Q1 क्लास आ गया 4 to 6। तो लिखेंगे Q1 क्लास = 4 to 6। 4 से 6 के बीच में Q1 है। तो Q1 का फॉर्मूला है, तो Q1 = फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, L + n/4 - CF/F × I। व्हाट इज L? L मीन्स लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसका, 4 और 6 का लोअर लिमिट 4 प्लस n/4। n/4 तो निकाले हैं, कितना 15 माइनस CF। CF का मतलब जो क्लास है उससे प्रीवियस क्लास का CF। तो दिस इज CF, कितना आएगा 11/F। F कौन सा है, उसी क्लास का F, ये हो जाएगा F। F कितना 12 × I। I क्या है, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। 4 और 6 का बीच में गैप, 4 और 6 के बीच में गैप कितना है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। दैट इज इक्वल टू कितना आता है 4 प्लस ये 11 माइनस 15 माइनस 11 4/12 × 2। दैट इज इक्वल टू कितना आता है 4 प्लस ये आता है 3, 2/3 मतलब 0.67। दैट इज इक्वल टू 4.67। तो आपका Q1 आ गया 4.67।
एक बार Q1 आ गया फिर हम निकालेंगे Q3। सेम प्रोसीज्योर Q3 का, पहले निकालेंगे Q3 क्लास, फिर हम निकालेंगे Q3। तो निकालिए Q3 क्लास, निकालिए Q3 क्लास। फॉर्मूला क्या होगा Q3 क्लास का? 3n बाई फोर्थ आइटम, 3 इंटू एन। एन कितना है? एन कितना है? एन है 60 बाई फोर्थ आइटम, that is equal to 15 into 3, 45th आइटम। 45th वाला आइटम Q3 है, तो Q3 क्लास निकालेंगे। तो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 45th वाला आइटम 3 में नहीं, 11 में नहीं, 23 में नहीं, 43 में नहीं, 53 में है, तो 8 से 10, दैट इज Q3 क्लास। तो दैट इज इक्वल टू 8 to 10, 8 से 10 के बीच में Q3 क्लास है। तो Q3 का फॉर्मूला डालेंगे, Q3 निकल जाएगा। Q3 का फॉर्मूला क्या है? L प्लस, यहाँ पर n/4 था, ये हो जाएगा 3n/4 माइनस CF बाई F इंटू I। L कितना? L है लोअर लिमिट 8 प्लस 3n/4, 3n/4 कितना है? 3n/4 तो अभी निकाले है 45 माइनस CF, CF का मतलब ये जो क्लास है उसका ऊपर वाला क्लास का CF कितना आएगा? 43 बाई F, F उसी क्लास का, उसी क्लास का F, तो ये हो जाएगा CF, ये आ जाएगा F। तो F होगा कितना? 10 इंटू I, ये दोनों के बीच में गैप 2, तो कितना आता है? कैलकुलेट करो, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस, हिसाब कर लो, 45 माइनस 43, 2 बाई 10 इंटू 2, that is equal to 8 plus 4 by 10, 8.4, 8 plus 4 by 10, that is equal to 8 plus 0.4, that is equal to 8.4। तो Q3 आ गया 8.4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में Q1 आ गया, Q3 आ गया। तो अभी बाकी का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में Q1 आया कितना और Q3 आया कितना, निकालते हैं। Q1 का वैल्यू दे दिया है, Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम निकाल दिए अभी Q1 का वैल्यू। Q1 का वैल्यू आया 4.67 और Q3 का वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वल टू Q3 का वैल्यू आ गया 8.4। तो अभी हमको बाकी जो क्वेश्चन पूछा है वो दोनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन अभी पूछा है, क्या निकालना है आपको? निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। Interquartile range. How to calculate interquartile range? That is the difference between Q3 minus Q1. निकालते हैं, Q3 है 8.40 माइनस Q1 कितना है? 4.67। कितना आता है? 8.40 माइनस 4.67, that is equal to 3.7 हो गया इंटरक्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ interquartile range. What is coefficient of interquartile range? Coefficient of interquartile range is equal to, फॉर्मूला क्या है? Q3 minus Q1 divide by Q3 plus Q1, that is equal to Q3 minus Q1, Q3 हो गया 8.40 minus 4.67 divide by 8.40 plus 4.67,
दैट इज इक्वल टू कितना आता है 8.40 माइनस 4.67 कितना आता है 3.73 डिवाइड बाय 8.40 प्लस 4.67 दैट इज इक्वल टू 13.07 इसका कैलकुलेट करो वैल्यू आता है 0.285 सो हमको मिल गया इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हम बात किए कैसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। लिखिए, हेडिंग कीजिए क्वार्टाइल डेविएशन। So this is the third measure. First range, next interquartile range, third one is quartile deviation. तो लिखेंगे first point, quartile deviation is also known as semi interquartile range. Quartile deviation is also known as semi interquartile रेंज। बेटा फाइनल सुना है और सेमीफाइनल सुना है। सेमीफाइनल फाइनल का आधा फाइनल को बोलते हैं सेमीफाइनल, जो आधा फाइनल है। तो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है? इंटरक्वार्टाइल रेंज का आधा है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो लिखेंगे हेंस क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज बाई 2, या नहीं तो समझ में आ जाएगा दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। समझ में आ गया? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। ओके, अभी हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हेडिंग कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो दिस इज एन व्हिच मेजर? दिस इज एन एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर मतलब ये किस में आएगा? यूनिट में आएगा। कौन से यूनिट में? जो यूनिट में डाटा दिया हुआ है। सेम यूनिट in which data is given। अभी हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हेडिंग कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2 होल डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 बाई 2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2 कैंसल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या आया? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। इसका मतलब इसका फॉर्मूला जो है कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला जो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला वही है। सो दिस इज ए व्हिच मेजर? दिस इज ए कौन सा मेजर है? तो फॉर्मूला आ गया ये Q3 कोएफिशिएंट वाला का।
दिस इज ए रिलेटिव मेजर। तो इसका फॉर्मूला किससे आएगा, सेम यूनिट में आएगा, ना यूनिट लेस में आएगा, ये पॉइंट फॉर्म में आएगा या नहीं तो परसेंटेज फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है हमको मिला, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ IQR, वही तो क्वार्टाइल डेविएशन समझ में आ रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन IQR का 2 में डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज वही है, तो वो वैल्यू हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हेडिंग कीजिए कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हेडिंग कीजिए कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कैसे क्वार्टाइल डेविएशन को कंप्यूट करेंगे, कैसे में 3 चीज होगा, पहले इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। लेकिन जो भी सीरीज में देखते हैं देखने दो, हमारा फॉर्मूला वही है। क्या फॉर्मूला है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2, और ये फर्स्ट एब्सोल्यूट वाला, और एक है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला जो है मैं बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला वही है, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो यही दोनों फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। अभी इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट, ओके, तो सर ये प्रॉब्लम तो आप पढ़े थे अभी, हाँ हम पढ़े थे, ये किस में पढ़े थे, इंटर क्वार्टाइल रेंज में, वो सेम प्रॉब्लम था। तो सेम प्रॉब्लम था तो इसका Q1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं और Q3 कैलकुलेट कर चुके हैं। Q1 का वैल्यू कितना था, ये सेम प्रॉब्लम का वैल्यू सॉल्व किए थे, देखते हैं फर्स्ट केस में। हाँ सर ये वाला प्रॉब्लम था, ओके ये वाला प्रॉब्लम था। Q1 वैल्यू कितना आया था, Q1 वैल्यू सर निकाले थे 10 और Q3 वैल्यू निकाले थे सर 26। तो Q1 10 था, Q3 26 था, तो Q1 इजिकल टू 10, Q3 इजिकल टू 26, Q1 इजिकल टू 10 और Q3 इजिकल टू 26। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहां पर पूछा है क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो हमको क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2।
Q3 था 26, Q1 था 10/2, कितना आया 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, हाँ दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 कितना होगा 26 माइनस 10 डिवाइड बाई 26 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 16/36, दैट इज इक्वल टू 16/36 का वैल्यू कितना आएगा, हम तो निकाल चुके हैं और एक बार निकाल देते हैं। 16/36 दैट इज इक्वल टू 0.444। तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये वही क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में दो अलग चीज पूछा था। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए और उसका कोएफिशिएंट निकालिए। तो हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दिए, कोएफिशिएंट निकाल दिए। कौन से केस में, इंडिविजुअल सीरीज। अभी पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज, वही वाला प्रॉब्लम करेंगे जो प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में x दिया है, f दिया है, वैल्यू वही सेम है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं Q1 का वैल्यू, हम कैलकुलेट कर चुके हैं Q3 का वैल्यू, देख लेंगे और हम निकालेंगे यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा इसका कहाँ पर है, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम इसका कर चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं, तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, बस ये वाला क्वेश्चन। Q1 निकाल चुके हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कौन सा, इट्स कोएफिशिएंट, सेम क्वेश्चन है। इसका हमारा Q1 कितना आया था, Q1 आया था 20 और Q3 आया था 30। तो हमको क्वेश्चन मिल गया, Q1 20 है, Q3 30 है, फिर हम निकालेंगे Q1 20, Q3 30, Q1 20, Q3 30, तो Q1 है 20, Q3 है 30। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ निकालेंगे क्या, दो चीज निकालेंगे। पहले निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, फॉर्मूला डालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 कितना है 30, Q1 कितना है 20, 30 माइनस 20 10 हो गया। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 कितना है, Q3 है 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 10/50 दैट इज इक्वल टू 0.2। वैल्यू निकल गया, क्वार्टाइल डेविएशन आ गया और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। तो क्वार्टाइल डेविएशन का यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है, दैट इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। तो ये हो गया 30 माइनस 20/2 दैट इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 10/2 कितना आता है 5। तो आंसर एक आया 5, एक आया 0.2। हो गया डिस्क्रीट सीरीज का। तो फर्स्ट आया 5, नेक्स्ट आया 0.2। नेक्स्ट अभी बात करेंगे किसके ऊपर, लास्ट वाला कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसका भी वही प्रॉब्लम को करेंगे जो प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसका Q1 हम निकाल चुके हैं, Q3 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। Q1 का वैल्यू कितना है देख लेंगे, Q3 का वैल्यू कितना है देख लेंगे, फिर हम देखेंगे इसका कैसे निकालते हैं। Q1 का वैल्यू, ये वाला लेस देन वाला प्रॉब्लम है। Q1 का वैल्यू हम निकाले थे 4.67 करके, Q1 इज इक्वल टू 4.67 ऐसा कुछ था।
देख लेते हैं। एक सेकंड बेटा। हाँ, Q1 का वैल्यू था 4.67, हम कैलकुलेट कर चुके थे, और Q3 का वैल्यू था 8.4, 4.67 और 8.4, 4.67, 8.4, तो इसको लेकर करेंगे 4.67, 8.4, 4.67 था और 8.4 था। Q1 इक्वल टू 4.67 और इसका 8.4, इसका था 8.4। तो अभी हम निकालेंगे क्या, फर्स्ट निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन? देखो, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q3 कितना है? 8.40 माइनस 4.67 बाई 2 कितना आता है? दैट इज इक्वल टू, वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो 3.73 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1.865। और एक है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, दैट इज इक्वल टू, Q3 माइनस Q1 कितना है? 8.40 माइनस 4.67 डिवाइड बाई 8.40 प्लस 4.67, दैट इज इक्वल टू 3.73 डिवाइड बाई आता है 13.07, दैट इज इक्वल टू 0.285। This is regarding coefficient of quartile deviation. अभी हम पढ़ेंगे what are the advantages and limitation of this particular dispersion. ओके, कौन सा डिस्पर्सन है? ये है तो अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। फर्स्ट लिखिए एडवांटेजेस ऑफ IQR या नहीं तो क्वार्टाइल डेविएशन। इसका क्या मेरिट्स है? IQR और क्वार्टाइल डेविएशन का क्या मेरिट्स है? फिर हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ IQR एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो फर्स्ट पॉइंट, IQR क्वार्टाइल डेविएशन का पहला मेरिट है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन मिडिल 50% ऑफ द आइटम। पहले पॉइंट, इट इज नॉट affected by एक्सट्रीम वैल्यूज। ये एक्सट्रीम वैल्यू के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन मिडिल 50% ऑफ द आइटम्स। क्योंकि IQR निकाला जाता है किसमें? Q3 माइनस Q1, और क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है Q3 माइनस Q1 बाई 2। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम, ये दोनों अफेक्ट नहीं करते हैं क्वार्टाइल्स को। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इट इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज।
ओपन एंडेड सीरीज जहां पर ऊपर का छोर पता नहीं, नीचे का छोर पता नहीं, वहां पर ये डिस्पर्सन इजीली निकल सकता है। क्यों? क्योंकि हमको ये मिडिल 50% के ऊपर बेस्ड है। तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, इट इज वेरी यूजफुल in case of which series? Open ended series. These are the two important merits of IQR और QD। पहला मेरिट क्या है? ये एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर अफेक्टेड नहीं होता है, ये मिडिल 50% ऑफ द आइटम्स के ऊपर कैलकुलेट होता है, और ये ओपन एंडेड सीरीज में इजीली कैलकुलेट हो सकता है। अभी देखेंगे व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ IQR एंड क्वार्टाइल डेविएशन। IQR और क्वार्टाइल डेविएशन का क्या क्या डिमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस है। पहला डिसएडवांटेजेस है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, इट इज ओनली बेस्ड अपॉन मिडिल 50% ऑफ द आइटम्स। फर्स्ट, it is not based upon all items, ब्रैकेट में only based upon middle 50% of the item. And second demerit, it is not capable of further algebraic treatment. It is not capable of further algebraic treatment. तो दो डिमेरिट्स आया। फर्स्ट, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल आइटम्स, ये सारा आइटम के ऊपर बेस नहीं है। फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसको बेस करके हम दूसरा कोई अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट और कोई फॉर्मूला IQR और क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर बेस नहीं है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ IQR और क्वार्टाइल डेविएशन। अभी इसके साथ हम क्लास को खत्म करेंगे। तो ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या पढ़े एक बार समरी कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। समरी, आज के क्लास में हम पढ़े क्या निकालना, दो चीज पढ़े। फर्स्ट पढ़े IQR निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। कैसे निकालते हैं IQR? इट्स द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। फिर सेकेंड पढ़े कोएफिशिएंट ऑफ IQR। कैसे निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ IQR? दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े, सेकेंड फॉर्मूला पढ़े, थर्ड फॉर्मूला पढ़े क्वार्टाइल डेविएशन। कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन? दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। नेक्स्ट फोर्थ पढ़े कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकला? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ये चार फॉर्मूला आज के क्लास में पढ़े। पहला फॉर्मूला पढ़े IQR का, फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। सेकेंड फॉर्मूला पढ़े कोएफिशिएंट ऑफ IQR का, फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। थर्ड पढ़े क्वार्टाइल डेविएशन का, फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 बाई 2। फोर्थ पढ़े कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का, दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। आप देख लीजिए ये दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर एक चीज और पढ़े, क्या पढ़े? कोएफिशिएंट ऑफ IQR इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ IQR जो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वही है। So this is the summary of our class. ये 5 चीज इंपॉर्टेंट है आज के क्लास में पढ़े।
तो क्लास खत्म होने से पहले लेट मी फास्ट रिपीट यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. माय यूट्यूब चैनल इज कॉमर्स फोरम. एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, काइंडली प्रेस द बेल आइकन and like button. If you have any doubt, you can contact me in my email id. My email id is biswamisra@gmail.com. Thank you. Thank you all. Thank you for watching my video. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you.